صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ولایت اور سیاسی شعور۔ حضور والا، ہم نے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں اور بہت ساری تمثیلات، حکایات، بہت سارے معارف آغازات کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ چونکہ ولایت کا تعلق انسان کے عقائد سے ہے، انسان کے عقیدے سے ہے، ولایت کا تعلق انسان کی سرپرستی سے ہے، اور ولایت کا تعلق انسان کی بالادستی سے ہے۔ چونکہ آج کے زمانے میں اگر آپ ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے تو بعض اوقات ولایت کے مفاہیم کو بہت سارے وہ افراد کہ جو اس معنی کو سمجھتے تو ہیں لیکن حقیقی معنی کے مصداق اور مفاہیم میں فرق کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہم تطبیق دینے میں، ہم سمجھنے میں اور بہت ساری چیزوں کے کیلکولیشن کرنے میں دقتیں اور دشواریاں اور کنفیوژن پیش ہوتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اسی حقیقی معنی کو ہم سمجھ لیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کے بدلنے کا انتظار کریں کہ کوئی بدلے گا تو ہم بدلیں گے، کوئی چینج ہوگا تو ہم چینج ہوں گے۔ علیہ السلام، کوئی راہ راست پر آئے گا تو ہم بھی آ جائیں گے۔ حضور والا، یہ انسان کے اعمال کا تعلق کسی کے بدلنے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، کسی کے چینج ہو جانے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم دنیا میں، ہم آخرت میں، ہم قبر میں اور ہم دیگر مراحل پر۔ لیکن انسان کا ساتھ زندگانی میں اگر دیکھا جائے تو جتنی ہماری حیات ہے اتنی دیر تک لوگوں کا ساتھ ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، زوجہ ہو، دوست ہوں، احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، وہ کب تک؟ بس جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک اس کا ساتھ ہے، اور اس کے بعد اس کے درمیان اور ہمارے درمیان رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور جس چیز کا رابطہ منقطع نہیں ہوتا وہ ہے اعمال۔ آج اگر آپ ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے تو بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتے، اپنے ان چیزوں کی فکر کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا سامنے والے سے سلام دعا نہ بند ہونے پائے، سامنے والے رشتہ داروں سے ہماری دوریاں نہ ہونی پائے، کیونکہ رشتہ دار ہی کام آئیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رشتہ دار کہاں تک ہیں؟ جہاں قبر کے آخری مراحل تک وہ بھی جائیں نہ جائیں، پنک جائیں تو اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اگر آپ غور کیجئے، اعمال کا تعلق انسان کے پنکنے اور نہ پنکنے سے نہیں ہے، اعمال کا تعلق انسان کے انجام سے ہے، انسان کے عمل سے ہے، انسان کے کردار سے ہے، انسان کے اپنے
किए हुए आमाल खैरात और आमाल सय्यात है, जैसा वो करता जाएगा, अंजाम देता जाएगा, वैसे ही सारी चीजें उसके ऊपर मुरत्तब होती चली जाएंगी। अगर अच्छी चीजों के ऊपर उसने ध्यान दिया तो अच्छाइयां मुरत्तब होंगी, और अगर बुरी चीजों के ऊपर ध्यान दिया तो उसके ऊपर बुराइयों के असरात क्या हो जाएंगे, मुरत्तब होते चले जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के जमाने में एक छोटे से बच्चे को अगर आप देखिए तो जो चीजें आज हमारे नौजवानों के माइंड को कैप्चर करने और हाईजेक करने का काम करती हैं, वो जानते हैं क्या है? वो यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आज इंसानों को क्या कर दिया है, इंसानों को यहां तक पहुंचा दिया कि उनके माइंड को अपने हिसाब से कैप्चर कर लिया है, अपने हिसाब से हाईजेक कर लिया है। अब जैसा यानी कंपनी वाले या दीगर साजिशगर या वो अफराद जो चालबाज हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसे ही वो हमारे माइंड को, हमारे बच्चे के माइंड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। अब जब ये इस तरीके से इन माइंडों को कैप्चर करते हैं तो आप जरा सा अंदाजा कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जब वो खेलता है तो उसके उठने बैठने बोलने का तरीका, उसका हाव भाव, उसका रहन सहन वैसे ही होता जाता है जैसा वो मोबाइल के ऊपर देखता है। अगर ये चीजें मुरत्तब नहीं हो रही तो आप बताइए जरा सा, ये चीजें मुरत्तब हो रही हैं। और जब ये चीजें मुरत्तब हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अपना असर हमारे ऊपर क्या कर रही हैं, छोड़ रही हैं। अलैहिस्सलाम जब ये अपना असर हमारे ऊपर छोड़ रही है तो ईमानदारी बताइए, अभी बच्चा जिसके ऊपर शरीयत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसके ऊपर हलाल और हराम उसके ऊपर नाफिज नहीं होते हैं, जिसके ऊपर कोई भी आमाल खैरात और सय्यात इसके ऊपर मुरत्तब नहीं होते हैं, लेकिन ये जितने भी नाबालिगी यानी अभी बालिग होने से पहले, मुमय्यज होने से पहले, तमीजदार होने से पहले, शऊर आने से पहले ये जितनी भी चीजें अंजाम देगा इसमें इसके माँ बाप शरीक हैं। यानी अगर ये अच्छाई कर रहा है तो इसकी अच्छाइयों को इसके माँ बाप के अकाउंट में जो आमाल है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और अगर बुराइयां कर रहा है ये हिस्सा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, फैसला आपका। समझ में आ रहा है? यानी अगर इस चीज को आप जरा सा देखिए, अब ईमानदारी से आप बताइए, इंसान जैसे कहता है हमारे ऊपर असरात मुरत्तब नहीं हो सकते, मैं तो सक्षम हूं, मैं तो फला हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो वो कर सकता हूं, ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने जिस इंसान को मोहलत दी है अलैहिस्सलाम इला वक्त मालूम के लिए, उसकी नस्लें, खुद उसके अफराद, उसके सारे चेले चापर जितने भी हैं, उसकी टीम आज हर इंसानों के ऊपर क्या है, मुअय्यन है, और बाकायदा तौर पर सिस्टमेटिक वे में वो अपने उमूर को अंजाम दे रहे हैं। अब ये और बात है आप समझ पाए ना समझ पाए, कभी हो सकता है लाहौल पढ़ करके आप भगा दिए, लेकिन आज तो हमें दिखता है कि बहुत सारे अफराद लाहौल पढ़ना भी गवारा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ये जो बच्चे होते हैं अगर इन्हें आप ना टोके तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के कुरान को क्या करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या कोई गुनाह करते हैं? नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन जो एक तहजीब है, तमीज है, जो आदाब है, वो यही है कि आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी आप पहले इस कलमात को कहिए ताकि जो शैतान है, मरदूद है, भगाया हुआ है, उससे आप पनाह मांगिए। आज इसी कलमात को हमने क्या किया, जब कुरान पढ़ने में छोड़ दिया तो अपनी उमूमी जिंदगी में हम इस कलमे का इस्तेमाल कब करेंगे? इस कलमे का इस्तेमाल यानी जब हमारे ऊपर शैतानत गालिब होने लगे, यानी हमारा जहन, हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच यानी बदलने लगे, तो इस कलमात की जिम्मेदारी यह है कि हम इसको क्या करें, कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन उमूमी तौर पर आप जरा सा देखिए, इंसान कसरत से नहीं पढ़ता,
पढ़ता ही नहीं तो इसमें कसरत और किल्लत की कोई बात ही नहीं है। बहुत कम अफराद ऐसे होंगे जो यानी उमूमी और आमियाना जिंदगी में अपने इस कलमात को अपनी जिंदगानी में बरूवेकार ला रहे होंगे, इस्तेमाल में ला रहे होंगे। यही कह दें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये इसके अलावा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। यानी जबकि ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये उस वक्त कलिमात का आप जिक्र ज्यादा कीजिए जब आप परेशानियां घेर लें। नहीं, लेकिन हम लोगों ने इसको इस्तेमाल कहां पर किया? यानी जब अपने पास से किसी चीज को जुदा करना चाहा, हरकत को जुदा करना चाहा। अब इसी चीज को आप बदल दीजिए कि मालूम दिया कोई परेशानी आ रही है, कोई मुश्किलात आ रही है, कोई अच्छाइयां आ रही हैं, कोई चीजें आ रही हैं, तो आप यहां पर अगर कहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी कुव्वत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के इहाते से, अल्लाह की दस्तरसी से क्या हो, बाहर हो। तो अब इसी चीज को दूसरे हिसाब से देखिए तो मालूम देगा कि सारी मुसीबतें भी अल्लाह की तरफ से आती हैं, सारी आसानियां भी अल्लाह की तरफ से आती हैं। अब अगर मुश्किलात आती हैं तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम का विर्द ज्यादा किए ताकि ये चीजें क्या हो जाए, दूर हो जाए और कट जाए। और हम क्या करते हैं, हम इसको वहां पर महसूस कर देते हैं जहां से हमारे जहनों में इन्हिराफात पैदा होता है, हमारे जहनों में गुमराहियां पैदा होती हैं, हमारे जहनों में यानी दूरियां पैदा होती हैं। तो हम इन चीजों को वहां पर ला करके इस्तेमाल करते हैं, और जब वहां पर ला करके इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है जब हकीकी माना अपने से अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा, तो उसके असरात हो सकता है उल्टे मुरत्तब हो सकता है मुरत्तब ना हो। अब इसी तरीके से विलायत के माना है कि मालूम लिया जिस विलायत को कुरान ने इस्तेमाल किया हमने उस विलायत को माना नहीं, और जिस विलायत से कुरान ने रोका उस विलायत को हमने अपने ऊपर क्या कर लिया, हावी कर लिया। जैसे मालूम लिया कुरान कहता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह वली किसका, अहले ईमान वालों का, और शयातीन वली किसके हैं, यानी अलैहिस्सलाम, वो अफराद जो गुमराह हैं, जो गैर ईमान वाले हैं, जो ईमान से भटके हुए हैं। ये औलिया हमद तागूत, यानी इनके औलिया कौन लोग हैं, तागूत हैं, इनके औलिया शयातीन हैं, इनके औलिया कौन है। अब इसी चीज को जरा सा हम यानी अपने जमाने के हिसाब से इसको जरा सा कैलकुलेशन करते चले जाए और ये समझ लें कि आया हमने अच्छाइयों को अपनाया है या बुराइयों को, अच्छाइयों से दूरी की है या बुराइयों से दूरी की है। अगर अच्छाइयों से नजदीक आए तो फबेहा, और अगर बुराइयों से नजदीक आए हैं तो जाइए तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। क्यों, इसलिए कि अगर कोई बुराइयों से नजदीक आ गया है तो अल्लाह माशाअल्लाह, यानी जाए वो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। क्यों, इसलिए कि अगर सही चीज को गलत माना में इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर चीज दिखने में एक जैसी हो। मसलन मैं एक मिसाल देता हूं सिर्फ बात को समझाने के लिए। पहले सवाल करता हूं, ईमानदारी बताइए दवा का काम क्या है, बोलिए, अरे बोलिए जरा, दवा का, दुआ नहीं पूछा है, आसान। दवा का काम है मर्ज को दूर करना, खत्म करना, उसका मुआलजा करना, इलाज करना, सही है। अब इसी जगह पर कोई साहब ज्यादा अक्लमंद हो जाए और कहें साहब दवा का काम शिफा देना है, मैं मेडिकल जाता हूं, जितनी दवा मिलेगी सब खा जाऊंगा। ईमानदारी बताइए दवा का काम क्या था, शिफा देना। लेकिन अगर मरीज के मरज के मुताबिक दवा और डोज मुअय्यन ना हो तो क्या होगा, फायदा होगा नुकसान, नुकसान। वो फायदा के बजाय क्या करेगी, नुकसान करेगी। अब आप कहिए साहब दवा का काम तो फायदा पहुंचाना था, इसने नुकसान क्यों पहुंचाया। अब इसी तरीके से आइए विलायत का काम क्या था,
फायदा पहुंचाना। लेकिन अगर गलत विलायत को अपने ऊपर हावी कर लिया तो क्या होगा? फायदा पहुंचाइए नुकसान। आप कहेंगे साहब हम चाहे इनकी विलायत में रहें चाहे इनकी विलायत में रहें, नहीं, इनकी और उनकी विलायत से काम नहीं चलेगा। जो हकीकी विलायत के मालिक हैं उनकी विलायत में रहोगे तो फायदा मिलेगा, और अगर उनकी विलायत से बाहर हो जाओगे तो फायदा नहीं मिलेगा। सवाल पढ़िए समझिए। चलिए एक मिसाल और देता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, सही है, मालूम दिया कि उठाया, गूगल के ऊपर डाला साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है कि इसके कौन कौन सी दवाएं वो होंगी, उसने उठाया कि साहब अगर ये हो रहा है तो ये ले लीजिए, ये हो रहा है तो ये ले लीजिए, ये हो रहा है ये ले लीजिए, ये हो रहा है ये ले लीजिए, ये हो रहा है ये ले लीजिए, सही है। सर के दर्द की किस्में भी होती हैं, सब दर्द एक जैसा दर्द होता है, सब दर्द एक जैसा होता है? अलग अलग होता है। ये अलग अलग दर्द तशखीस कौन देगा भाई? दिखने में तो कहां दर्द हो रहा है? सर में हो सकता है चोट का दर्द हो सकता है ब्लॉकेज का दर्द हो सकता है माइग्रेन का दर्द हो सकता है यानी किसी टेंशन का वो हो सकता है हाई बीपी के लिए का वो हो सकता है लो बीपी हो सकता है हाई शुगर हो, एक मिसाल दे रहे हैं, हो सकता है कहीं पर आंखें वीक हो रही हो सकता है कान की वजह से सर में दर्द हो सकता है दांत की वजह से सर में दर्द हो, एक मिसाल दे रहा हूं। अब इसी चीज को आप कहिए साहब सर में दर्द हो रहा है, गूगल ने दिया साहब सर के दर्द के लिए ये दवा है और आप उठाइए खा जाइए। देखिए विलायत की मैं मिसालें दे रहा हूं, सिर्फ सामने ऐसी मिसाल दे रहा हूं जो छोटे से बच्चे के भी जहन में आएगी। अब ईमानदारी बताइए, जैसे आज हम कहते हैं अरे मजलिसी तो होनी है, चाहे इन मौलाना से पढ़वा ले चाहे उन मौलाना से पढ़वा ले, इसलिए मजलिसी तो है। मियां ऐसे ही सर का दर्द का इलाज करोगे तो बहुत सारी मजलिसें तुम्हें कहां तक पहुंचा देंगे। सलवार तो पढ़िए से मिलकर समझिएगा, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, क्योंकि विलायत इतना आसान नहीं है। आज बहुत सारे अफराद जो धोखा खा जाते हैं वो इसीलिए जैसा मौला की मजलिस में मौला से मतलब है, किसी और से थोड़ी मतलब है। ठीक है मौला से मतलब है, मौला ने क्या कहा, जानबूझ करके मक्खी निगली नहीं जाती, याद रखिएगा, जानबूझ करके मक्खी निगली नहीं जाती। अल्लाह ने ग़िज़ा के खाने का इंतजाम क्या किया है? जब खाना पकता है तो आप पकने के बाद जब प्लेट में आया तो आपने टच किया, गरम है, सही है, सूंघा, खुशबूदार है, जायकेदार है, गैर जायकेदार है, जायका कम है, जबान पे रखा, पता चल जाएगा नमक कम है, मीठा नहीं है, तीखा है, क्या है, इला आखिर का। बस प्लेट से लेकर के जबान तक का इंतजाम अल्लाह ने किया कि तुम ये अंदाजा लगा लो ये खराब तो नहीं है, ये सड़ा तो नहीं है, ये वैसा तो नहीं है। बस तुम्हारी अक्लों को ये लगाना है ये हलाल का है या हराम का है। कहा बस यहीं पर अक्ल का इस्तेमाल करना है। कहा बस विलायत ऐसे ही है कि हर तरीके से सारी चीजें आम है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कहां पर विलायत हमें गुमराह कर रही है, कहां पर विलायत हमें सही रास्ते पर लेकर के आ रही है। सलवार पढ़िए सब मिलकर के। है या नहीं है? देखिए मैंने 3 मिसालें दी आपके सामने और तीनों मिसालों को जरा सा आप जाकर के सोचिएगा। जैसे बहुत सारे नजर मौला के नाम के ऊपर क्या कर लेते हैं, बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए जरा सा, नजर मौला के ऊपर क्या कर लेते हैं? हमारे यहां के समाज का तो शऊर और गिर गया है, और गिर गया है। हमारे यहां नजर किस पर होती है? पाकीज़ा चीजों पर, ताहिर चीजों पर। और शरीयत ने अगर हुक्म दिया है तो जो चीजें पैक हों उनके, लेकिन जानबूझ करके अगर हम देखिए, मैं बहुत सारी चीजों को, आज हमारे यहां क्या है,
हमारे यहाँ क्या ऑप्शन दूध का पैकेट का नहीं है? है। पैकेट के लिए शरीयत ने क्या कहा? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपना इस्तेमाल कीजिए। अब इसी जगह पर एक साहब ज्यादा काबिल है, कहने साहब हमें पता है उसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर भी होता है, एरियल भी होता है, फला भी होता है, केमिकल भी होता है, ये भी होता है। एक मिसाल दे रहा हूं, मतलब उमूमी मेंटालिटी के हिसाब से। अब हो ना हो ये मेरा काम नहीं है, ना मेरा, मैं सिर्फ एक वो मिजाज जो लोगों की तरफ से आता है उसको बयान कर रहा हूं। अब क्या आता है ये छानबीन करने वालों की जिम्मेदारी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब यहीं पर कुछ लोग काबिल हो गए ज्यादा, कहा साहब क्या बात है, इंसान इंसान है, हम चाहे इनसे ले लें चाहे उनसे ले लें। कहा बस यही तो फर्क करना है, इनसे और उनसे लेने में बहुत फर्क है। बस ये देखना कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो दूध की खीर बनाया मौला को भी नजर के, कहा साहब वो खोल गई तो क्या हो गया? सलवात पढ़िए कम से कम। यानी अपने इल्म को ला करके शरीयत के इल्म के ऊपर क्या कर देते हैं? थोप दिया। कहा साहब ये खोल गया तो क्या हो गया? पाक हो गया। ऐसे जब इंसान नजीस हो तो उसे पानी डाल के खौला दो, पाक हो जाएगा? नहीं, जब तक कि वो उन चीजों को वो रियायत नहीं करेगा जो शरीयत ने हुक्म दिया है। अब समझ में आया कंफ्यूजन कितनी जगह पर होता है, अख्तियार कहां पर होता है, अकल लगानी कहां पर चाहिए, अकल का इस्तेमाल कितना करना चाहिए। अब अगर यहां पर कोई मक्कारी कर ले, मैं नहीं जानता, मैं नहीं ये करता, मैं नहीं, या दीन के नाम पर, दुनिया के नाम पर, ताल्लुकात के नाम पर सही और गलत को मिक्स कर दे, तो ये समझ जाइए सबसे ज्यादा कयामत के दिन सजा खाने वाला यही है। कहा क्यों? कहा सबसे बुरा इंसान वो है जिसे हक का और सच का पता हो और फिर भी वो सच का साथ ना दे। साजिश करके अलग ही कैफियत है, क्योंकि विलायत को हमने कहां से लिया? अल्लाह से। अल्लाह से पैगंबर तक, पैगंबर से अइम्मा तक, और यही विलायत जब आई हम तक तो मालूम दिया यही विलायत आई 18 ज़ुल्हिज्जा से जानशीनी तक, सरपरस्ती तक, विलायत तक। अब जानबूझ करके कोई अगर निगल ले तो, जानबूझ करके पर्दा डाल ले तो, जानबूझ करके अगर अपने आप को अंधेरे में रखे तो, समझ में आया? यानी अब समझ में आया कि विलायत अपने माना तो रखती है, विलायत अपना मफहूम तो रखती है, लेकिन विलायत और सियासी शऊर दोनों का रास्ता, दोनों का रास्ता, दोनों के समझने का तौर तरीका, जैसे हमने मिसालें दी थी जनाबे अम्मार यासिर की, सही है, हमने मिसाल दी थी जनाबे सलमान की, सही है, हमने मिसाल दी थी और दीगर अफराद की। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए, क्या विलायत का सही माना खाली इन्होंने समझा था या और भी लोग समझ रहे थे? कभी आपने सोचा कि मदीने में जहां पर पैगंबर के इंतकाल से पहले, पैगंबर के इंतकाल से पहले अगर आप चले जाइए, ज्यादा दूर नहीं, यानी तकरीबन मुहर्रम और सफर का 28 दिन, 18 दिन इधर, कितने दिन हुए? यानी 18 इधर हो गए, 12 इधर निकाल दीजिए, 12 टोटल कितने दिन हो गए? 2 महीना। अब इतने दिनों में जो 1.25 लाख थे, जो 1.25 लाख थे और जिन्होंने जानबूझ करके विलायत अली का इनकार कर दिया था, ये क्या थे? साजिशगर थे, अनजान थे, नादान थे, जानबूझ करके हक को छिपा रहे थे। क्या तुमने उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी? अगर उसकी हिस्ट्री समझी होती तो आज के दौर में भी बहुत सारी चीजों को समझना बहुत आसान होता। सलवा पढ़िए सब मिलकर के। नतीजा देना चाहता हूं, पहले खुतबे का नतीजा देना चाहता हूं। अब आप जरा सा वो कीजिए, उन्वान क्या है? विलायत
اور سیاسی شعور. اگر سیاسی شعور نہ پایا جائے, سمجھ نہ پایا جائے, سمجھ نہ پائی جائے, تو ذرا سا سلمان فارسی علیہ السلام, سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ فارس کے رہنے والے تھے, اور جناب سلمان پیغمبر سے بھی بڑے تھے, صحیح ہے. اور انہوں نے کئی مذہب کو اختیار کیا, کئی مذہب کی کتابیں پڑھی اور ریسرچ کر کے جس شعور کی بنیاد پر آ کر کے ولایت کا انتخاب کیا, ولایت کو اختیار کیا, اور آنے کے بعد اپنی پیشانی کو در اہل بیت پر خم کر دیا, اتنا خم کر دیا, اتنا تابع بنایا, اتنا فرمانبردار بنایا, اتنا اپنے آپ کو ضم کر دیا کہ پیغمبر کو کہنا پڑا سلمان منا اہل البیت. تو ولایت اگر سیاسی شعور پیدا کر لیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر حقیقت اہل بیت میں یعنی خاص معنی میں شمولیت نہ ہو لیکن عام معنی میں علیہ السلام عام معنی میں شامل ہونے کا موقع پیغمبر دے دیا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سب بات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ رسول اکرم انسانی کرامت کے علمبردار ہیں. حضور والا دوسرے خطبے میں اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے, سمجھنے کی کوشش کیجئے تو بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آئیں گے کہ پیغمبر اکرم علیہ السلام انسانی کرامت کے علمبردار. حضور والا علمبردار یعنی رہبر, لیڈر, پیشوا, نبی, امام الی آخر بہت سارے معنی ہیں جس کے معنی ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. آگے آگے پیش قدمی کرنے والا, رہبری اور لیڈری کرنے والا, لیڈ کرنے والا, سب یہ سب علمبردار کے معنی میں. انسانی کرامت, اگر انسانی کرامت کو اگر ہم اردو میں اور آسان الفاظ میں سمجھانا چاہیں تو انسانی شرافت. انسانی کرامت یعنی انسانی شرافت, انسانی اچھائیاں, انسانی بہبودی, انسانی بہتری. صحیح ہے. اور اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم کے لیے ہم لوگ ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں جسے کہتے ہیں سیرت, جسے کہتے ہیں سنت. صحیح ہے. یہ دو لفظوں کا ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن ان دو لفظوں میں ایک ہوتی سیرت, ایک ہوتی سنت. سنت کا تعلق یعنی جو پیغمبر نے انجام دیا ہم اس پر عمل کریں. ایک ہوتی پیغمبر کی سیرت یعنی پیغمبر نے جس کام کو کانٹینیو انجام دیا اس کو ہم کانٹینیو میں کیا کرتے رہیں, انجام دیتے رہیں. جیسے الفاظوں کا بہت سارا کھیل ہے یہاں پر. سنت کو اگر وہ کہا جائے تو دوسرے لفظوں میں مستحب. سیرت یعنی اسے کہا جائے جسے اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں بہترین اخلاق.
यानी हम लफ्जों को जरा सा वसअत दे रहे हैं ताकि माना और मफाहिम आप तक पहुंच सके। अब आप जरा सा बताइए, पैगंबर के अखलाक का मुतालिया मुसलमान ने कितना किया? पैगंबर के अखलाक को अगर आप बेहतरीन तौर के ऊपर और सुनहरे हरफों में अगर लिखा जाने वाला होना चाहिए तो यही होना चाहिए, पैगंबर ने सबसे पहला जो दर्स दिया वो यही कि ऐ अहले ईमान वालो, तुम अलैहिस्सलाम, तुम जो है वो अपने अखलाक को बेहतर कर लो, अपने किरदार को बेहतर कर लो, अपनी तरबियत को बेहतर कर लो, अपने उसूल को बेहतर कर लो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर तुम इन्हीं अखलाक को अगर देखना है तो इन्हीं अखलाक की हम दो किस्में कर सकते हैं। एक है मामलात जो लेन देन है, एक है हमारा किरदार जो हम लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। यानी इंसानी करामत को दो हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा क्या? पहला हिस्सा मामलात, दूसरा हिस्सा बर्ताव, सुलूक, यानी जो हमारा आपसी रहन सहन ताल्लुकात है, सही है, एक दूसरे के साथ रवैया है। और दूसरा रवैया क्या है? मान लीजिए जो लेन देन है, मामलात। पैगंबर ने क्या कहा? कहा साहब अपने मामलात को सही कर लो। आज मुसलमान ने क्या किया? जितने मामलात लेन देन के गड़बड़ हैं पहले स्टेप पर, किसी और जगह पर खराब नहीं है। लेन देन वाला अगर आप जरा सा अंदाजा कीजिए तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? हुजूर वाला देखिए, यहां पर मैं कुछ चीजों की वजाहत की ये दे रहा हूं। कभी कभी एक लेन देन होता है जो हमारा रिश्तेदारों में होता है, एक लेन देन होता है जो विलायत जिनके ऊपर रखते हैं उनके मातहत अफरादों में लेन देन, जैसे मियां बीवी लेन देन, सही है, जैसे औलाद का लेन देन। अब यहां पर जो इनका लेन देन है, यहां पर कहते हैं डंडी मार सकते हैं। शरी हुक्म बता रहा हूं, यानी अल्फाज मेरे हैं लेकिन हुक्म यह है कि यहां पर यानी आप लेन देन में, जैसे बहुत सारे अफराद कहते हैं अरे लाओ दे दो, जरा सा दे देंगे, अब फिर रहा अरे लाओ दे देंगे, यानी ये क्या है? यानी ये गुंजाइश वाला है। कहा शरीयत इसमें गुंजाइश दे सकती। कहा क्यों? कहा ये विलायत रखते हो और चूंकि तुम इनका पूरा अखराजात नफका पूरा करते हो तो यहां पर कोई दिक्कत, वजाहत मैंने इसीलिए कर दी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत वहां पर है जहां पर हम रिश्तेदारों के साथ लेन देन करते हैं दो हिस्सों में। एक होता है हमारा इन्फाक, यानी हमने इनको जरूरत थी, हमने कहा कोई बात नहीं आप जरूरतमंद है, लीजिए मेरी तरफ से रख लीजिए। अब जो हमने कहा मेरी तरफ से रख लीजिए, ये हम वापस के तलबगार नहीं है। कहा ये क्या है? कहा ये हुस्न अखलाक है, तुम्हारा रवैया, सुलूक, बर्ताव, हुस्न अखलाक ये तुम्हारा है। और एक ये था, हमारे यहां कुछ नहीं था, हमारे घर में आए और आने के बाद किसी ने कहा साहब, मौलाना साहब, अगर मैं मिसाल अपने ऊपर दे रहा हूं, हालांकि कोई ऐसा मौरिद नहीं आता है लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। आए मौलाना साहब, अगर जरा सा 100 रुपए की हमें आज आप दे दिए, कल हम आपको दे देंगे। ये जो कल दे देंगे, ये कल का गिरेबान कहां तक पकड़ेगा? कहां तक? आखिरत तक ये साथ नहीं छोड़ेगा। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, वहां तक साथ नहीं छोड़ेगा। पुलिस से रात तक ये साथ रहेगा, गर्दन पे कोई भी हो, चाहे लेन देन 1 रुपए का हो या कुछ भी ना हो, जिसकी वैल्यू हमारी नजर में ना हो। जैसे आज हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो मालूम दिया
999 काटा कितना 1000। ये जो 1 रुपया है, मिसाल दे रहा हूं मैं, इसको आप अदरवाइज ना लीजिए, जितने बिजनेसमैन है कभी चिपका ले अपने ऊपर। ये जो 1 रुपया है, अगर यही 1 रुपए यानी 1000 रुपए लिया और आपने 1 वापस नहीं किया, ये चाहे तो कयामत के दिन आपको कर सकता है। परवरदिगारा सौदा कितने का था 999 का, काटा कितना। अब वहां पर ये नहीं चलेगा फुटकर, वहां पर फुटकर सलवार पड़िए सब मिल गया। मैं गुफ्तगू को अजीब मोड़ पे ले आया ना, आप एक और सलवार पढ़िए। लेकिन अच्छा ही मोड़ आया है, कम से कम वहां से तो मौलाना अलमदार बचा लेंगे ना, अगर सुधर गए। 1-1 रुपए पर अलैहिस्सलाम 1-1 रुपए पर सुधर गए तो मौलाना अलमदार क्या कर लेंगे, बचा लेंगे कि साहब कोई बात नहीं 999। अब समझ आए कंपनियां कितनी चालाक हैं कि धोखाधड़ी खुद कर लें कोई बात नहीं, लेकिन जब ये चाहें तो फंसा सकती हैं कस्टमर को, या कस्टमर इनको फंसा सकता है? कस्टमर फंसा सकता है। 999 199, इसलिए जो ऑनलाइन डिजिटल लेन देन होता है उसमें ये गड़बड़ी नहीं होती है। अब जरा सा ये इंसानी करामत की मिसाल मैंने 2 दी। एक कौन सी, एक वो वाला लेन देन जो मियां बीवी बीच में था, एक वो लेन देन जो हमने किसी से कहा भाई आप परेशान हाल है इसे रख लीजिए, यानी हम वहां पर लेने के हकदार नहीं। एक वो था जब कोई आया तो कहा साहब आप इसे मौलाना साहब दे दीजिए, हम आपको कल दे देंगे, और वो कल जो है का कयामत मोहलत लेकर के गया, कल दे देंगे। और उसके बाद जब वो ज्यादा अगर कह दिए, कहेगा हम तो मौलाना साहब से बोलते ही नहीं है, और गजब का, यानी देना लेना तो दूर की बात हो, कहता हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है सर, कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ ताल्लुक हो रहेगा। देखिए मेरे अजीज, मैं मिसाल अपने ऊपर दे रहा हूं, लेकिन इस मिसाल का ताल्लुक हर रिश्तेदार से है, हर अजीज अकारिब से, हर उस समाज से जहां पर हम उठते बैठते हैं। मिसाल मेरे ऊपर है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं सिर्फ बात समझाने के लिए, ताकि इंसानी करामत के अलमबादार कैसे। पैगंबर ने कहा अपने मामला सही कर लो सब सही हो जाएगा। अब मामला कहां पर आपका, यहां पर 999 पर, 1099 पर, साहब 1100 रुपए आप उठाया ले लिया, कोई बात नहीं। इनके लिए मैं एक ऑप्शन देता हूं, जितने बिजनेसमैन हैं 1-1 रुपए के लिए आप वहां पर 1-1 चॉकलेट रख लीजिए, साहब 1 रुपए ये ले लिए, वो कहे कोई बात नहीं, कहिए हाँ कोई बात नहीं ये आपका, कोई बात नहीं ये आपका, और नहीं तो आप फुटकर पैसा रखिए 1-1 रुपए, जो वो हो 1-1 रुपए का लेन देन आप करते रहिए, ताकि कल कोई अगर मिसाल देना चाहे गैर मुस्लिम तो कहेगा फला दुकान वाला बड़ा ईमानदार है, वहां पर 1 रुपया अगर 999 था तो 1000 नहीं लिया, 999 रुपए ही लिए। सलवार पढ़िए सब मिल जाते, समझ आ रहा है। अब वो जब देखेगा कहेगा साहब आप मुसलमान हैं, हाँ कह रहे मेरे पैगंबर ने यही कहा था कि साहब किसी की लेन देन में कोई घपला ना कर देना, कहेगा कितने अच्छे इंसान है, जब इतना अच्छा ये इंसान हो सकता है तो पैगंबर कितना अच्छा होगा। समझ में आया? यानी इंसानी करामत का अलमबरदार कैसे, पैगंबर इंसानी करामत का अलमबरदार। मैंने मिसाल दी लेन देन की, और इस तरीके से आप जरा सा समझिए तो पैगंबर ने क्या कहा साहब अपना ये लेन देन अच्छा कर लो, मामला अच्छा कर लो, बकिया यही वो मसला है जहां पर तुम अटकोगे, यही मसला वो है जहां पर सब फंसेंगे, यही वो मसला है जहां पर सब गिरफ्तार होंगे। कोई ऐसा नहीं हो सकता है जो यानी इस मैटर में फंसता ना हो, गिरफ्तार ना होता हो, सब फंसेंगे। अब जब सब फंसेंगे तो मालूम दिया हम मर करके चले गए, दौलत कितनी, लेन देन कितना, मामलात कितना। इससे अच्छा यह है कि जब आखिरत में यानी हमारे आमालों का लेन देन हो, उससे अच्छा यह है कि हम दुनिया में ही लेन देन करके क्या कर दें, बराबर कर ले, रफा दफा कर ले। सलवा पढ़िए सब मिल जाते हैं। क्योंकि ये 1 रुपया फंसाएगा, सही है ना,
यानी मैंने मिसाल 1 रुपए की दी है, बात समझने की है। अब जरा सा आखिरी नतीजा देना चाहता हूं कि पैगंबर इंसानी करामत के अलमबरदार कैसे। कहा मामला सही कर लो, कहा दूसरी चीज अपना रवैया सलूक, जिसे रहन सहन कहते हैं, कहा ये रहन सहन अच्छा कर लो उन नौजवानों से जो एक घर में रहते हैं और अपने माँ बाप से मुंह मोड़ करके कमरे में दाखिल हो जाते हैं। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं कि मालूम दिया साहब अम्मा अब्बा का रूम कहां है, साहब वो दरवाजे वाला हो, ताकि कोई खटखटाए तो ये उठ करके खोल दे, ताकि कोई आए तो ये जहमत में हो, नींद इनकी खलल में हो, पीछे वाले की खलल में। अब आप सोचिए कितना चालाक इंसान है। कोई आए जाए, फकीर आ जाए तो लेने अम्मा अब्बा करे, हमारा सामना ना हो। सवाल पढ़िए। अब आप जरा सा अंदाजा कीजिए ये नजरिया, और अपना कमरा कहां पर। अब वहां से निकले, मालूम दिया कौन, हम यानी इसका मतलब हरी झंडी मिल गई, अब आप अपने कमरे में जा सकते हैं। कहा खबरदार, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत तो करते जाओ, उनसे सलाम दुआ तो करते जाओ, उनके साथ उठते बैठते तो जाओ, उनको कुछ तोहफा तहत देते तो जाओ, उनकी जरूरियात पूछते तो जाओ, उनकी आवाज पोशी करते तो जाओ। ये सब जब करते जाओगे तब यही रास्ता तुम्हें जन्नत तक लेकर के जाएगा। और अगर ये दरवाजा छोड़ दिया तो लाख कहते रहो मां के कदमों के नीचे जन्नत है, तो जन्नत तो तुम्हारे घर में है, वो तुम हासिल नहीं कर पा रहे हो। एक सलवात पढ़िए समझो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू